Hello students. In the last video we have discussed, before that I have uploaded two videos. In those both videos we have discussed about little basic knowledge. First of all, introduction. Then we have discussed one property. It was regarding to the rational numbers, and the title was properties of rational numbers. In that properties of rational numbers, we have seen about closure property, and that closure property regarding to the whole numbers. Then after that we have seen closure property regarding the integers. Still we haven't seen what is the concept of rational number. Then we will see the closure property regarding to the rational number. I have written over the title properties of rational number, but what is meant by rational number? What is the exact concept of rational number? That I am going to explain today. I am going to start now. Listen here. I have written here title rational numbers. Let me first of all tell you what is the definition of rational numbers. The definition of rational number is the numbers which can be written in the form p upon q. It's very important. The number which can be written in the form p upon q, where p and q are integers, and q is not equal to 0. That is very important condition regarding this definition. What I said, the number which can be written in which form? The form is, that is very important form. Look here and try to understand. The number which can be written in p upon q form. कौन सा form है? The number which can be written in p upon q form, where the condition is p and q are integers. P and q are integers. Maybe p and q integers. Why it is said integers? Because it may possible the value of p is positive, the value of q is negative. It may happen the value of q is negative and value of p is negative and value of q is positive. Do you understand what I said? Value of p positive हो सकती है तो q की negative हो सकती है, q की अगर positive है तो p की negative हो सकती है, reverse manner में, vice versa we can say. Okay, once again I repeat the same definition. The number which can be written in the form p upon q, where p and q are integers, and important thing, q is not equal to 0. The very important condition is what? Q is not equal to 0. In this condition, suppose we will take q is 0, then any number divided by 0. Suppose q की वैल्यू हमने इधर 0 ले ली तो क्या होगा? Any number divided by 0, you know that very well. Not defined, हम उसका आंसर ही निकाल नहीं सकते. इसके लिए ऐसा बोला है, the value of q is not equal to 0. Okay, once again I repeat the definition. The number which can be written in which form? P upon q form, where p and q are integers but q is not equal to 0, is called a rational number. It's called a rational number. In other word, we can say the number which is written in p upon q form. In other word, what we can say? The number which is written in numerator and denominator form. इधर देखो p क्या है? न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर है. Means the number which can be expressed, the number which can be written in numerator and denominator form, that number is, we can consider a rational number. For example, I will take here some example for your understanding purpose. Suppose I have taken here example. For example, suppose we will take example minus 2 by 3, 3 by 4, 6 by 7, then 9 by 5. If you observe carefully all those numbers, if you observe carefully, then look here, minus 2 is the numerator, 3 is the denominator, 3 is the numerator, 4 is the denominator. Here 6 is the numerator, 7 is the denominator, 9 is the numerator, 5 is the denominator. Are you getting what I said? Okay, means those all are rational numbers. Means those all numbers are written in which form? P upon q form. That's why those numbers, we can call those numbers, those are rational numbers. Okay, but sometime suppose I am going to write here 0, okay, 2, 4, ऐसे number मैंने लिखे. Suppose I have written here which number? 0 to 4, and I will ask, suppose what?
those are also rational numbers? Can we say those are rational numbers? Then first of all, when you will look those numbers, then some of you they may say, no, those are not a rational numbers, because here denominator is not there. Sometimes students are getting confusion in this case. 0 2 4 इसको डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो रैशनल नंबर कैसे बोलेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? बट those are also rational numbers. कैसे rational numbers? We can write those numbers in which form? We can write those numbers in which form? Look here, 0, we can write 0. How we can write? 0 upon 1. We can write 2, 2 upon 1. We can write 4, 4 upon 1. अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 है तो उसकी वैल्यू में कुछ भी नहीं डिफरेंस होगा, सेम एज इट इज वैल्यू आएगी. समझ में आ रहा है? 0 upon 1 यानी कि 0, 2 upon 1 यानी कि 2, 4 upon 1 यानी कि 4. मीन्स those numbers are also rational numbers. Means the number which can be expressed in P upon Q form, those all numbers are called as rational numbers. Okay, I think you got idea about the concept of the rational number. Now I am going to start the first point regarding to this. First point means already we have discussed about it, that is closure property regarding to the rational number. Now I am going to start closure property. Closure property. Okay, last time I have shown one table. Here I am going to explain one by one. Closure property, first operation we are considering. Which one operation we have to consider? We have to consider addition operation, then subtraction, then multiplication, then division, and we will see regarding to closure property of rational number. Okay, then first of all I will write here addition. Now we will consider two rational numbers and we will add them and we will see, can we get again rational number? Suppose we will get again rational number, then we can say rational numbers are closed under addition. Suppose we will not get again rational number, then you know that very well, we have to say rational numbers are not closed under addition. Okay, देखो इधर, I will take here number. Suppose I have taken 3 upon 8 plus 4 upon 5. पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने. what I have taken 3 upon 8 plus 4 upon 5. We will add these. तो एडिशन करने के लिए दो तरह से एडिशन कर सकते हैं. हाउ वी कैन ऐड? वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम, अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ डिनोमिनेटर, इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी विल गेट द आंसर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट? न्यूमरेटर of the first number into denominator, then denominator of the first number into numerator. Okay, means 3 into 5 plus, बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस, एंड 8 into 4 डिवाइडेड बाय क्या होता है? दोनों के डिनोमिनेटर. डिवाइडेड बाय व्हाट विल हैपन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द बोथ द नंबर्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 3 into 5. लुक हियर, 3 into 5, बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस लिखेंगे, अगर माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे. 8 into 4 डिवाइडेड बाय 8 into 5 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये एडिशन की एक मेथड है. व्हेन वी आर एडिंग टू रैशनल नंबर्स टू ईच अदर, दैट टाइम वी हैव टू डू सम, और वी कैन से एडिशन लाइक दैट वे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. 3 into 5 कितना आता है? देखो 15 प्लस 8 into 4 32 डिवाइडेड बाय 8 into 5 40 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू एडिशन क्या आएगा? देखो 47 डिवाइडेड बाय 40. 47 डिवाइडेड बाय 40. नाउ लुक दिस, 47 डिवाइडेड बाय 40, इज इट रैशनल नंबर? Yes, absolutely it is also rational number, because this is also in which form? Numerator and denominator form. Okay, means after adding two rational numbers to each other, we are 100% getting what? We are 100% getting again rational number. Again rational number we got here. That's why we can say here what we can say? Look here sum यानी कि क्या? Here sum यानी कि क्या? Addition. Okay, here sum of rational numbers. Here
sum of rational number is again rational number. Am I right? Again rational number ही आया ना. Okay, here the sum of rational numbers is again rational number. Okay, then we can say, hence what we can say, rational numbers are closed under addition. Am I right? Rational numbers are closed under कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोज्ड अंडर एडिशन. एम राइट? ऐसे लिखते हैं ना हम. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? वो किस में लिखा था? टेबल में लिखा था. अभी सेपरेट लिखा है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? एडिशन करने के बाद, दो रैशनल नंबर की एडिशन करने के बाद फिर से रैशनल नंबर आ रहा है, तो वी कैन से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. अभी देखेंगे सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है देखो. अभी इधर मैं लिखता हूँ. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम शोइंग हियर. लुक केयरफुली. सम स्टूडेंट्स दे वेर सेइंग दैट सर, पिछले जो नेचुरल नंबर का मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, वो सॉल्व करने के लिए बोला था, तो सम वेयर सेइंग दैट सर फिर से एक्सप्लेन करो. तो ये जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उनके लिए किफ़ायती शुरू होगा, अच्छा होगा. ओके, लुक हियर. नेक्स्ट ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स फ्रॉम ईच अदर. डायरेक्टली एग्जांपल आई विल टेक हियर. सपोज आई हैव टेकन 5/7 minus 2/3. 5/7 by 2/3. 5/7 minus 2/3. डू सब्ट्रैक्शन. क्या होगा देखो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर. यानी कि क्या होगा? 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3. 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू क्या होगा देखो? 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 21. एम आई राइट? 15 माइनस 14 कैसे आ गया? 5 इंटू 3. इधर देखो 5 इंटू 3 कितना आता है? 15. बीच में माइनस साइन, माइनस 7 इंटू 2 14 आता है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21. तो आंसर क्या आएगा देखो? 15 माइनस 14 आंसर क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाय 21. अभी देखो 1 डिवाइड बाय 21 ये रैशनल नंबर है. यस, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स. मीन्स वी कैन से हियर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. हियर डायरेक्टली लिखता हूं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर subtraction. Okay, closed under subtraction. Okay, next, which is the next operation? Multiplication. ध्यान से अगर सुन रहे हो तो समझ में क्लियरली आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स. वी विल यूज हियर टू रैशनल नंबर्स. ओके, दो नंबर लेंगे. अभी देखो इधर -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/5. ओके, मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. ओके, मल्टीप्लाई करो. -2 इंटू -2 इंटू 4 -8 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 15. करेक्ट, डायरेक्ट लिखा है इधर मल्टीप्लिकेशन मैंने. -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8. 2 इंटू 4 8, माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 5 15. यानी कि क्या आ गया? -8 डिवाइडेड बाय 15. अभी देखो ध्यान से, -8 डिवाइड बाय 15, इज इट रैशनल नंबर? यस, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर. मीन्स वी कैन से हियर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, हियर रैशनल नंबर्स are closed under
विच मल्टीप्लीकेशन। गॉट आइडिया? ओके, अभी चौथा बचा है कौन सा? डिवीजन। What is remain? Division. Now we will consider. First of all, you see which how many points we have seen. First of all, we have seen कौन सा point हमने देखा? Addition. बाद में कौन सा देखा? बाद में कौन सा देखा? Addition के बाद कौन सा देखा? इधर देखो, Subtraction. बाद में कौन सा देखा? Multiplication. अभी कौन सा चल रहा है? Division. This is the last operation. Remember, sometimes students are getting confusion. You should not get. अभी डिवीजन का एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ इधर. सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर योर फर्स्ट एग्जाम्पल, -5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. क्या एग्जाम्पल है? -5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. ओके, बोथ आर रैशनल नंबर्स है. तो रैशनल नंबर का डिवीजन अभी देखो कैसे होगा. -5 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 5. करेक्ट. तो डिवीजन करते वक्त क्या होगा? -5 डिवाइडेड बाय 3, ये जो 2 डिवाइडेड बाय 5 है वो इसको डिवाइड करते वक्त इसका क्या होगा? रिवर्स होगा. रिवर्स होगा यानी कि क्या होगा? ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर को जाएगा और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को जाएगा. कैसे? देखो इधर 5 डिवाइडेड बाय 2. क्या किया मैंने? देखो समझ में आ रहा है क्या? इधर क्या है एग्जाम्पल? -5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 5. तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे हम? -5 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. बट डिवीजन करते वक्त क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है, इधर डिनोमिनेटर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 5 है. डिनोमिनेटर कौन सा है? 2 डिवाइडेड बाय 5 है. तो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर होने के कारण क्या होता है? वो रिवर्स हो जाता है. रिवर्स हो जाता है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जाता है. यानी कि 2 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस वो मल्टीप्लाई होता है. इधर ये जो डिनोमिनेटर है वो इधर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है और इधर हमें डिवीजन करना पड़ता है. ओके, तो डिवीजन इधर करते वक्त क्या हो गया? देखो -5 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 हो गया. तो इधर डिवीजन हो ही नहीं सकता, ऑल आर डिफरेंट नंबर्स. तो हम क्या लिखेंगे? -5 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इसका यानी कि क्या? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो आंसर क्या आएगा? देखो इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6. आर यू गेटिंग? इधर देखो अभी क्या आ गया? रैशनल नंबर ही आ गया. तो देखते वक्त हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ये करेक्ट है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. ओके, क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? देखो, बट अगर मैंने ऐसा लिखा 0 डिवाइडेड बाय 5, क्या लिखा? 0 डिवाइडेड बाय 5, तो सम स्टूडेंट क्या बोलेंगे? सर 0 आएगा आंसर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, कौन से भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 का तो टेबल नहीं होता. समझ में आ रहा है? यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 0 अगर कौन सा भी नंबर लिखो इधर, अगर 2000 डिवाइड बाय 0 अगर लिखेंगे तो उसका भी आंसर नहीं आता. तो आंसर क्या लिखते हैं हम? नॉट डिफाइंड. आंसर क्या लिखते हैं हम? नॉट डिफाइंड. तो आंसर किसका आता है? ऐसा होगा तो आंसर आता है. 0 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो क्या लिखेंगे हम? 0. समझ में आ रहा है? 0 डिवाइड बाय 5 0 आता है, लेकिन 5 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइन आता है. तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते. क्या नहीं लिख सकते? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ऐसा हम नहीं लिख सकते. तो कैसा हम लिखेंगे? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बट इफ वी एक्सक्लूड 0, यानी कि क्या लिखेंगे हम? रैशनल नंबर्स, क्या लिखेंगे हम? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ऐसा लिखेंगे. बट रैशनल नंबर क्लोज हो सकते हैं. अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो क्लोज भी हो सकते हैं. तो क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? बट
इफ वी एक्सक्लूड जीरो, अगर हम जीरो को क्या कर दे, एक्सक्लूड कर दे, यानी कि जीरो को डिनोमिनेटर नहीं करेंगे, तो वो रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, व्हाट वी कैन से, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। पहले हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बट इफ वी एक्सक्लूड जीरो देन रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इसके नीचे हम लिखेंगे रैशनल नंबर बट इफ वी एक्सक्लूड जीरो देन रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मैं अपने सेपरेट पेज पे लिखा है वो दिखा दूंगा, उसमें भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी इधर मैंने कौन सी कंसेप्ट एक्सप्लेन की है आज, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूं। आई हैव टोल्ड टुडे रैशनल नंबर्स। व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर्स, द कंसेप्ट विच इज रिटर्न इन विच फॉर्म, और वी कैन से the number which is explained in P upon Q form, that is known as rational number, where P and Q are integers, but important thing क्या होनी चाहिए, Q is not equal to 0। तो इधर मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए। बाद में हमने कौन सी प्रॉपर्टी शुरू की, क्लोजर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू विच नंबर, रैशनल नंबर। तो पहला ऑपरेशन हमने लिया एडिशन, उसमें रैशनल नंबर्स क्लोज हो गए। दूसरा हमने लिया सब्ट्रैक्शन, उसमें भी रैशनल नंबर क्लोज हो गए। तीसरा हमने लिया मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी रैशनल नंबर क्लोज हो गए। चौथा हमने लिया डिवीजन, उसमें भी रैशनल नंबर क्लोज होते हैं, लेकिन हमें जीरो क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है। आई हैव रिटन ऑन सेपरेट पेज दैट आई विल शो यू, यू विल अंडरस्टैंड इट एंड दैट यू हैव टू राइट इन योर नोट्स नोटबुक। देखो इधर अभी ध्यान से देखो, ये तुम्हें नोट्स में लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा है। पहले डेफिनेशन लिखिए, बाद में एग्जांपल्स लिखे। अभी इधर मैंने एक्सप्लेन करते वक्त एक एक एग्जांपल लिया था, इधर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दो दो एग्जांपल लिखे हैं, तो नोट्स में दो दो एग्जांपल लिखो। ओके, इधर क्या लिखा है देखो, इधर भी 47/40 आया, इधर 14/8 आया। तो रैशनल नंबर इज गिवन, अगेन रैशनल नंबर, द सम ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज गिवन, अगेन रैशनल नंबर, हेंस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इधर सब्ट्रैक्शन भी मैंने दो एग्जांपल लिए, इधर एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक ही एग्जांपल तुम्हें दिखाया था। ओके, बट इधर मैंने दो एग्जांपल दिए, व्हाइल राइटिंग यू हैव टू राइट 2 एग्जांपल्स। तो इधर देखो 1/21 आया और -7/40 आया, तो फिर से रैशनल नंबर आ गए थे, तो हमने लिखा रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सी थी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया इधर, करेक्ट है ना। तो ये दूसरा भी मैंने एग्जांपल लिया है, दोनों तरफ देखोगे तो रैशनल नंबर ही आया है। 8/15 रैशनल नंबर है, 6/35 रैशनल नंबर है। तो इसके एंड में हमने क्या लिखेंगे अभी देखो इधर, इसके एंड में हमने ये लिखना है, हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर। क्या लिखना है देखो, हियर ये लिखना है, हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज अगेन, स्लोली दिखाता हूँ देखो, here multiplication of rational number is again rational number, hence numbers are closed under multiplication, hence numbers are closed under multiplication। लास्ट में हमने कौन सा पॉइंट देखा, डिवीजन। डिवीजन पे मैंने एक एग्जांपल उधर दिखाया था, ये पहला एग्जांपल मैंने उधर दिखाया है एक्सप्लेन करते वक्त। आंसर आया था 25/6, -25/6 आंसर आता है। ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो क्या इधर है -25/6। इधर दूसरा भी एग्जांपल मैंने इधर लिखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3। ये मैं बता रहा था 2/7 ये उल्टा हो जाएगा तो 3/5 आएगा। इधर इधर कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 2 × 3 6 आएगा, 7/5 35 आएगा। तो इधर देखो एक्सप्लेनेशन फिर से मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Here division of rational number is again rational number, but 5/0 is not defined। 5/0 को हम डिफाइन कर नहीं सकते, तो क्या है लिखेंगे हम, इट मीन्स, इधर देखो फिर से ध्यान से देखो और सोचो, इट मीन्स rational numbers are not closed under, rational numbers are not closed under division, but
if we exclude 0, then the collection of all rational numbers are closed under division. exclude 0 इसका मतलब है अगर हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले रहे हैं तो सारे रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ओके, एक्सरसाइज के लिए एक टेबल दे रहा हूं मैं, ये टेबल तुम्हें कंप्लीट करना है एक्सरसाइज में. क्या टेबल है देखो, ट्राई दीज. ओके, इधर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखी है. फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन सी है देखो, इधर रियल नंबर एडिशन में क्लोज होते हैं क्या, इधर देखो एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या लिखा है इधर. ओके, नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स. एडिशन में क्लोज्ड अंडर, एडिशन में क्लोज होते हैं क्या, यस. सब्ट्रैक्शन में क्लोज होते हैं क्या, यस. मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होते हैं क्या, तुम्हें लिखना है. डिवीजन में क्लोज होते हैं क्या, तुम्हें लिखना है. ऐसे सारे नंबर्स, इंटीजर्स लिखे हैं, होल नंबर्स लिखे हैं और नेचुरल नंबर्स लिखे. समझ में आ रहा है. नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल लास्ट वीडियो में था, वो तुम्हें सॉल्व करना था. आई होप सो यू सॉल्व. अभी ये भी एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करना है, टेबल तुम्हें सॉल्व करना है. आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट रैशनल नंबर एंड क्लोजर प्रॉपर्टी. एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.